हो गया। Today I will teach you about subject, object and predicate. Nowadays what is happening, the teacher was teaching to this other colleges there and schools are there. They are not able to make clear what is subject, what is object. Why subject, object both indicate the same thing. Subject also may be told what is things, personal things, and object also shows personal things. Yes, sir. But what is difference between those? सब्जेक्ट हम विशेषण लिख रहे हैं, इसमें तो चले जाएंगे, ठीक है। बड़े भारी ये सब्जेक्ट मालूम है, सब्जेक्ट कॉपी लेके हम आते हैं सर। हाँ जाइए लिखा रहिए। लिखिए, बड़ी सुंदर चीज पढ़ा रहे हैं, आज आप बड़ी ठीक आपको पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट इज वर्ड, ठीक है। या से राइट कागज कहाँ है, या से लाइक दिस, सब्जेक्ट इज वर्ड। अब ऐसे भी कर सकते हैं, फिक्स टाइम्स, फिक्स टाइम्स, या अपना दैट लिख सकते हैं, दैट टाइम्स, दैट टाइम्स, दैट टाइम्स, for the person or things, and persons are things, right? And person or things. See, this subject is indicating either person will be there or things will be there. Person will be there or things will be there. Person or things. What does the action? What? What does the action shown by the word? Definition of word हो गई। You can say like this, small definition किया, subject is a word, subject is a word, shortcut definition, subject is a word that is being discussed or dealt. Subject is a word, or subject is a person or thing, is a person or thing, is a person or thing, about which something is said, right? Or you can say like this, or you can say like this, subject is the theme of, subject is the theme of, subject is the theme of discussion, description or representation, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन। इसको यहाँ पर ऊंचा कर देते हैं, पढ़ा लिख सकते हैं, ये वाला
सर इरेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिए है ना? जी, नहीं, यस सर। आप part समझे से आर मास्टर जाइएगा आर part which names the person or thing which names the person or thing we speak about called subject of sentence. It's called subject of sentence, right? Yes. You see, all the sentences which are written on the blackboard, they are having same meaning. They are having same meaning. Just first example I am starting here. हमने फर्स्ट क्या लिखा है कि सब्जेक्ट इज ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर पर्सन और थिंग व्हाट जस्ट एक्शन फॉर बाय द वर्ड यही है व्हाट एक्शन फॉर बाय द वर्ड कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट क्या इंडिकेट करता है पर्सन और थिंग जैसे ही गोज ही पर्सन हुआ बुक्स आर ऑन दिस डेस्क बुक्स आर बुक्स यहाँ थिंग है चीज़ है बुक यहाँ सब्जेक्ट है तो लाइक दिस मेनी पर्सन आर थिंग एंड ऑब्जेक्ट आल्सो इंडिकेट सेम थिंग बुक्स आर पर्सन सो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट इज ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर पर्सन आर थिंग व्हाट एक्शन बाय द वर्ड यानी वर्ड के एक्शन का जो है वो बोध कराता है सब्जेक्ट जो है वर्ड के एक्शन का बोध कराता है और अंतर क्या है और ऑब्जेक्ट जो है वर्ड के एक्शन को प्रभावित करता है वो नहीं करता है प्रभावित करता है ठीक उसे हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ड एंड द वर्ड विच और द वर्ड विच इंडिकेट्स द व्हाट इज बीइंग डन बाय ए पर्सन दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट आदमी क्या कर रहा है एक्शन दिखा रहा है करने का और किसका एक्शन है ये सब क्या करते हैं सब्जेक्ट करते हैं उसी कहता है कि व्हाट द एक्शन बाय द वर्ड के एक्शन को कौन दिखा रहा है सब्जेक्ट दिखाएगा सब्जेक्ट ये जैसे यू आर राइटिंग आप लिख रहे हो तो आप सब्जेक्ट बन गए यू सब्जेक्ट बन गया अंडरस्टैंड माय पॉइंट और ऑब्जेक्ट हम कैसे सर्च हाउ डू यू सर्च सब्जेक्ट यू हैव टू टेक वन स्टार वर्ड दैट इज ए हू और whom जैसे यू आर रीडिंग द बुक हु इज रीडिंग द बुक यू आर रीडिंग द बुक हु इज रीडिंग द बुक बुक पढ़ रहे कौन बुक पढ़ रहा है यू आर रीडिंग द बुक तब यू मिल गया इट विल यूज सब्जेक्ट wherever you make question who or whom differently you will find the subject and here we make question using the star word that is what and whom it indicates it finds out the object second क्या है subject is about really being discussed or dealt. I am discussing about the English. I am discussing about the English. Then being discussed, क्या डिस्कस किया जा रहा है तो the man who is discussing or dealing what about this is called subject. I am doing this one. Then being dealt डील किया जा रहा है पकड़ाया जा रहा है अबाउट बिजनेस अबाउट एनीथिंग और डिस्कस किया जा रहा है डिस्कसिंग अबाउट द
English grammar. We are discussing English grammar is subject here. Language is first. We are discussing about English grammar. We are discussing about English grammar. English grammar is subject. The point about what I am discussing in this room, that is a subject. That is a सब्जेक्ट ठीक समझ आ गया आपने? समझ गया ना? यस थर्ड पॉइंट आता है अब there is a person asking about it, something is said. I am telling something before you. I am telling something before you about it, जिसके बारे में कुछ कहा गया है. वो क्या होता है? वो आपका सब्जेक्ट होता है. I am telling before you something. ध्यान दीजिए थोड़ा सा. I am telling you something about before you in this room. कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं. समझ आ रहा है नहीं आपकी? समझ रहे हैं ना? तो जो आदमी बता रहा है, बोल रहा है, वो क्या होगा? आपका दैट इज सब्जेक्ट. इज सब्जेक्ट. आई एम सब्जेक्ट. माई सेल्फ इज सब्जेक्ट हियर. इसी तरह है इस सब्जेक्ट में पर्सन आस्किंग अबाउट इट, जिसके बारे में समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कहा गया हो. किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं. अब इंग्लिश ग्रामर में क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट. जो आदमी किसी चीज के बारे में कहा है वो आदमी आपका सब्जेक्ट हो गया. राइट? समझा रहे हैं? वो आदमी क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट है सब्जेक्ट इज ए थीम. थीम माना क्या होता है? टॉपिक. फिनिश टॉपिक. Subject is the theme of discussion, description, or representation. You see, we are discussing about English grammar. We are discussing about the English grammar. I am describing about English grammar. What happens? Why representation selected? In each and every year, there is such a festival of our they stand. Each and every year. It makes 15 August, 26 January, somebody delivers lecture. Each and every year, 15 August, somebody delivers lecture. Delivers lecture, chief guest or somebody. The last chief guest delivers. Chief guest tells something about the 15th August. तो हर साल को इसी रिप्रेजेंट फिर से हम प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में पेश कर रहे हैं. अभी साथ फिर करेंगे इसी से इट मीन्स द 15 अगस्त 26 बिकेम सब्जेक्ट. क्योंकि हम लोग हर साल 26 के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं. वी स्पीक समथिंग, वी टेल समथिंग, वी स्टार्ट समथिंग अबाउट 26 अगस्त. तो 15 अगस्त सबका हो गया, सब्जेक्ट हो गया. We same fashion we celebrate the 26 January also. 26 January आपका सन, क्योंकि every year we celebrate it. We celebrate it every 26. It means we also represent the 26 January and 15th August has been represented in your year. It means we are representing it. We are representing it. इसलिए हमको जो है रिप्रेजेंटिंग करने वाला क्या हो गया? सब्जेक्ट. क्या हो गया? सब्जेक्ट. नहीं क्लियर थिंक सो. क्लियर हो गया आपको? आप लोगों को पार्ट विच नेम्स द पर्सन पे छुट्टी नहीं आ रहा है. अगर हम से नहीं पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग. पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट. This is called subject of sentence. This is called subject of sentence. पर्सनल थिंग यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि सब्जेक्ट क्या होगा? पर्सनल थिंग होगा जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं. वी स्पीक अबाउट दैट इज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. हम जिसके बारे हम आपको किस बारे में बता रहे हैं? हमारे बारे में बता रहे हैं. राइट? करेक्ट. यही बात है कि हम लोग बचवा से कह रहे थे कि बचवा लड़का से उठा के आता है. मतलब ओके सर.
हाँ, तो कहा कि बिल्कुल कहने का मतलब ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। सही मतलब क्या बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। नहीं वो हम आवाज़ है इसे बंद कर देते हैं सर। सब्जेक्ट आई एक्सप्लेन अबाउट 5 डिसीजन ऑफ सब्जेक्ट। आप इसको लिखकर को लर्न कर लीजिए, बट मज़ा टीचिंग आई करता हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। दिस इज ए कॉल्ड सब्जेक्ट, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, दिस इज डिफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। नमस्ते। There are 5 definitions I explained here. I explained here 5 definitions of subject. It is very, very important. You not find any books. This is a book definition, 21. This is different definition. This I have made this. I have made this one. Among all the definitions of subject, this 21 is made by me. हम सबको इंक्लूड करके जो है एक सब आगे निकाल देते हैं, राइट। यस सर। अंडरस्टैंड। यस सर। कैसा रहा भाई, कैसा रहा। ऑल दिस एंड आई एम डूइंग बाय वन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का फल होता है, एनीथिंग। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स फल होता है, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होते हैं वो बहुत एडिकेट होते हैं। सब्जेक्ट वर्ड होता है, आप लोग जो पढ़ा रहा था वो जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस, डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट पढ़ा रहा था। इसके बाद आप नहीं आए नहीं हो सकता तबियत खराब। ना, हम कुछ डिफिनेशन आपको बताए थे आपका ये अबाउट दिस अंगूठा। क्या ये जीवन एंड सम अदर डिफिनेशन आपको डेफिनेटली मैं आपको बताया था, थोड़ा सा टाइम निकल गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ए ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ए ऑब्जेक्ट। ग्रामेटिकली person or what is the word or phrase representing the person or thing, the person or thing affected by an action of one. You will not find this in any book. This is not available in any book. हमारे परिसर से खोज कर हमने इसको निकाला था फारसी डिक्शनरी से, आया है टेकिंग फ्रॉम डिक्शनरी, राइट। और सर तो और ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड, object is a word, object is a word that on which the action of word, the action of word, the action of word is action of word is done. The action of word is done. Or object is the person or thing. Object is the person or thing. Is the person or thing. Object is the person or thing. On which action of feeling,
feeling is directed, क्लियर सवाल आया है ना? यस सर। क्लियर आया है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग ऑन विच एक्शन ऑफ दैट फीलिंग इज डायरेक्टेड। एक्शन ऑफ फीलिंग इज डायरेक्टेड। आज कैन से लाइक दिस, देखिएगा इसको, मिटा दें। आर हो गया। तो अभी है इसका मतलब, देखो ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड ऑन विच एक्शन ऑफ वर्ब इज डन। कहने का मतलब हमने ये कहा कि वर्ब के एक्शन को ये प्रभावित करता है। कारण क्या करता है? प्रभावित। क्या किया सर कुछ नहीं, प्रभावित करता है। प्रभावित करता है, और सब्जेक्ट जो है उसको बोध करता है, बतलाता है कि हम क्या कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट है प्रभावित करता है। समझा रहे कि नहीं? ये बोध नहीं करता है, प्रभावित करता है। सब क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ड से कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड ऑन विच द एक्शन ऑफ वर्ब इज डन, जिस पर कि वर्ब के का एक्शन जो है उसको किया जाता है। माने कि वे वर्ब के एक्शन को जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज पर्सन और थिंग ऑन विच एक्शन ऑफ फीलिंग इज डायरेक्टेड। इसमें क्या करता है कि एक्शन ऑफ फीलिंग इज डायरेक्टेड, ये डायरेक्ट सीधा जो है एक्शन को जो है वर्ब के एक्शन को जो है ये सीधा जो है प्रभावित करता है। ये सब क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड टू विच action of verb is affected. Action of verb is affected. So next जो है आपका जो है चौथा जो है ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड टू विच द एक्शन ऑफ वर्ब इज affected. Grammatically, noun are its equivalent the verb is affected. The verb is affected. Equivalent, governed by the active transitive verb are by a preposition,
by a preposition or by a preposition or you can say shortcut also. You can say you can write in shortcut also. That I am going to write here this now. Noun acted on or noun acted on by a active transitive verb by an transitive verb or by a preposition or by a preposition or by a preposition or by a preposition. Now you see here, the grammatically now all is equivalent governed by the active transitive verb or by a preposition. हम लोग just how we can say that if a transitive verb is not there, it means the sentence is not completed properly. That's why one adjective is here. Which role, which very important role in this sentence are governed by a preposition. He goes to market. The market is governed by two, that is preposition, that is preposition, or that is governed by preposition आता है. He is telling that the active transitive verb are by a preposition. And same thing actually is not preposition, that is noun acted on by an transitive verb or by a preposition or by a preposition. Or by a preposition. Or by a preposition. बताइए खत्म हो गया ऑब्जेक्ट. जस्ट नाउ आई फिनिश द ऑब्जेक्ट. बंद करने क्या है, बंद कर दीजिए. हो गया हो गया सर. हाँ.